Hello everyone, welcome back and welcome to my YouTube channel. I Prashant Sharma will teach you about the Hello everyone, welcome back and welcome to my YouTube channel. I Prashant Sharma today will teach you about the specific heat of the water. Along with this, I will tell you about the number of facts related to the water that we face in real life, and I will also tell you about the what is the relevance of the water in the sustainability of life on the earth. Okay, in this video you will learn number of things: how the water is important in our life, and how why the water is required in 70%, more than 70% on the earth, and in animals body and in the cell. Okay, so we will learn number of things. Okay, so before the starting the topic, I would like to discuss about the previous video. In previous video I had discussed about the temperature and heat. Okay, what is the temperature and what is the heat, and what is the thermal energy, and I had also discussed about the difference between the temperature and thermal energy. And before the previous video I was tell you about the property of water, and okay, so what is the property of water? In this property I already discussed about the cohesion and adhesion. Now I am discussing about ability to the moderate temperature. Actually the specific heat is related to this property, ability to the moderate temperature. Okay, means this property of water is just because of the specific heat. Okay, and how the specific heat can moderate the temperature of some things, so we will learn in this video. Okay, so let's start, come to the point and come to the topic. So first we need to know what is the specific heat. Okay, specific heat can be defined as the amount of heat that must be absorbed or lost for 1 gram of that substance to change its temperature by 1 degree Celsius. We can say means किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. सपोज यू हैव ए 1 ग्राम ऑफ या 1 ml ऑफ द वाटर, या वी कैन से 1 लीटर ऑफ द वाटर, एंड you want to raise the 1 degree Celsius temperature of the water. So you have to give the energy to rise in temperature of the water. So amount of the energy that will require to change 1 degree Celsius of the water, that is, we can say that is the specific heat of the water. So the specific heat of the water is the calorie per gram per degree Celsius. Okay, मतलब जो यूनिट है वो डिफाइन कर सकती है कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी हीट या जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कहते हैं. तो 1 ग्राम जो वाटर है उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपन को 1 कैलोरी की जरूरत होती है. ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब 1 ग्राम वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी
एनर्जी रिक्वायर होती है, वो एनर्जी कितनी है 1 कैलोरी, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ दी वाटर। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, वाटर हैज एन अनयूजुअली हाई स्पेसिफिक हीट देन दी अदर सब्सटेंस। मतलब जो वाटर है वो अदर जो सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में प्रेजेंट हैं, जो अदर सॉल्वेंट्स हैं, उनके कंपेयर में इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल हैज स्पेसिफिक हीट 0.6 कैलोरी पर ग्राम। ओके, दैट इज ओनली 0.6 कैलोरी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो इथाइल अल्कोहल है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी है 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, जो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट के कंपेयर में क्या है, कम है। अब इसका मतलब क्या है, देखो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस, वाटर का जो 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का 1 ग्राम है जिसका अपन को क्या करना है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर होगा 0.6 कैलोरी ही। तो ये इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रिलेटिव टू द अदर मटेरियल, water will change its temperature less than other liquid when it absorb losses a given amount of heat। इस पॉइंट का मतलब है कि जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है इसका फायदा होता है कि इसको जो टेम्परेचर है गिवन अमाउंट ऑफ हीट वो है कम चेंज होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल। मतलब मैं मान के चलो 1 कैलोरी जो है क्या कह रहा हीट दे रहा हूँ, कैलोरी एनर्जी दे रहा हूँ किसको, वाटर को, और 1 कैलोरी एनर्जी दे रहा हूँ किसको, इथाइल अल्कोहल को। तो जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो कैसे कैसे होगा, देखो सपोज यहाँ पर क्या होता है 1 कैलोरी हीट देने पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है किसका, वाटर का, ठीक है। और उसके केस में कितना 0.6 कैलोरी देने पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है किसका, इथाइल अल्कोहल का। लेकिन अब जब अपन इथाइल अल्कोहल को 1 कैलोरी देंगे तो कितना चेंज होगा 1/0.6 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, तो वी कैन से कितना होगा 1 पॉइंट अप्रोक्स आएगा 1.6 के समथिंग। ओके, मतलब जब मैं 1 कैलोरी ओके एनर्जी देता हूं इथाइल अल्कोहल को तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा 1.6 डिग्री सेल्सियस। सेम मैं 1 कैलोरी वाटर को देता हूं तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों में टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, यहाँ 1.6 है, वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से वाटर को कम अमाउंट में मतलब जब वाटर को अपन एनर्जी देती हैं तो उसका टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आता है कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस, अदर लिक्विड। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप 1 कैलोरी में एनर्जी दे रहा हूँ वाटर को तो 1 डिग्री सेल्सियस ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 कैलोरी में जब इथाइल अल्कोहल को दिया है तो 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है। अच्छा, कभी देखा है जब अल्कोहल होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाता है, मतलब वी कैन से कम हीट लेने से ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूँगा कि जो इथाइल अल्कोहल है, जो अल्कोहल है वो जल्दी इवेपोरेट क्यों होता है और जब वो इवेपोरेट होता है तो अपन को कूलिंग इफेक्ट क्यों मतलब कूलिंग क्यों लगता है, मतलब कूल ठंडा ठंडा फील क्यों होता है। ओके, उसका कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है वो अपन सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रीजन यू कैन बर्न। अब इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल देखो, द रीजन यू कैन बर्न योर फिंगर बाय टचिंग द साइड ऑफ आयरन पॉट ऑन द स्टोव व्हेन द वाटर in the pot is still lukewarm is that
द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन। अब इस पॉइंट का एक्चुअल में मीन्स क्या है, इसमें मैंने ये बताया है कि जब अपन किसी क्या के पानी को गर्म करते हैं स्टोव पर, तो देखना थोड़ी देर बाद कि पानी में की जो टेम्परेचर है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंजेस आती हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। लेकिन जब जिस बर्तन में अपन उस पानी को गर्म कर रहे हैं, जिस बर्तन में अपन वाटर को गर्म कर रहे हैं, उस बर्तन का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाता है। जब अपन उसको टच कर देते हैं तो अपन जल जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ जो मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही कम होती है कंपेयर टू वाटर। इस वजह से वो कम एनर्जी, कम हीट एब्जॉर्ब करके उसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, इस वजह से उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। ओके, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन ऐसे कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैन बी थॉट ऑफ एज ए मेजर ऑफ हाउ वेल अ सब्सटेंस रेजिस्ट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब वी कैन से स्पेसिफिक हीट we can define as the substance resists changing its temperature when it absorb or release heat। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर टेम्परेचर के बदलाव को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो इस लाइन में जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है, इस लाइन में यही लिखा है कि सब्सटेंस रेजिस्ट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर व्हेन इट एब्जॉर्ब और रिलीज हीट। मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो अपने अंदर टेम्परेचर की चेंजिंग को रेसिस्ट करे, कब, जब वो मतलब हीट एब्जॉर्ब करे और रिलीज करे। ओके, तो उस सब्सटेंस की उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, वाटर रेसिस्ट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर व्हेन इट डज चेंज इट्स टेम्परेचर इट एब्जॉर्ब और लॉसेस अ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट फॉर ईच डिग्री ऑफ चेंज। मतलब फर्स्ट जो यहाँ तक देखो जो कॉमा है, जो ये कॉमा दिख रहा है यहाँ तक, क्या इसका मतलब क्या है, वाटर रेसिस्ट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब जो वाटर है वो अपने टेम्परेचर को चेंज होने से रोकता है, और यदि इसका टेम्परेचर चेंज होता है, व्हेन इट डज चेंज इट्स टेम्परेचर, तो क्या होता है, इट एब्जॉर्ब और लॉसेस रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट फॉर ईच डिग्री ऑफ चेंज। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए यह ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब जब इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होगा तो ये ज्यादा मात्रा में क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। अब इससे फायदा क्या होगा ये अपन देखते हैं। अब देखो, हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू बीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब चाहे जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है वो उसका रीजन क्या है, एक्चुअली जो वाटर होता है उसके अंदर क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। और दूसरी चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज द थर्मल एनर्जी एंड व्हाट इज द हीट। ओके, तो थर्मल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से। मतलब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इफ एनी पार्टिकल मूविंग देयर सेल्फ, दैट पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी पार्टिकल है जो इसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है उसके अंदर क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। और जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो वी कैन से दैट सब्सटेंस हैव द थर्मल एनर्जी। ओके, तो अब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना उसकी क्या होगी, थर्मल एनर्जी होगी, उसके अंदर उतनी ही हीट होगी। अब देखो इसमें इस पॉइंट में मैं यही बताना चाहता हूं कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो किस वजह से होती है। देखो वाटर के अंदर 2 चीज मिलती हैं। वाटर के अंदर स्पेसिफिकली जो मेन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी है वाटर के मॉलिक्यूल से मूव करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल या सभी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं स्पेसिफिकली लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर,
ओके, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और उनकी यह प्रॉपर्टी जो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी है वो मूवमेंट की वजह से ही है। तो जब वाटर को हीट दिया जाता है तो क्या होता है कि जो हीट दी गई है वाटर को, उसमें से मैक्सिमम हीट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हो जाती है, और बची हुई जो हीट है, बची हुई जो एनर्जी है वो किस में यूज होती है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। मान के चलो सपोज 1 कैलोरी मैंने जो हीट दिया है उसका 80 to 90% जो हीट है, एनर्जी है, वो किस में यूज की जाती है, वाटर के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको ब्रेक करने में। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा देन रिमेनिंग जो हीट है, रिमेनिंग जो एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इस वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है, बिकॉज ऑफ वाटर के अंदर हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इस वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हाई होती है। अब मान के चलो जब मैं किसी वाटर को क्या दे रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैं वाटर को वाटर को एनर्जी दे रहा हूँ, तो वाटर को जब एनर्जी देता हूँ तो उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी है वो बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हो जाएगी, और बॉन्ड को ब्रेक करने में जब यूज होगी तो मैक्सिमम और रिमेनिंग किस में होगी, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैलोरी ऑफ हीट कॉज ए रिलेटिव स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकॉज मच ऑफ हीट इज यूज्ड टू डिसरप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो इस लाइन में यही बताया गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब उसको हीट देते हैं तो उसमें से मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसरप्ट करने में यूज की जाती है, देन रिमेनिंग एनर्जी है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को मूव करने में, उसके मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्प करती है, और जितना मूवमेंट इंक्रीज होता है उतना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। And when the temperature of water drops slightly, many additional hydrogen bond form, releasing a considerable amount of energy in the form of heat. अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो कंसिडरेबल अमाउंट में, मतलब कुछ अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो वो एनर्जी कहाँ यूज कर ली जाती है, उसकी मूवमेंट को मेंटेन रखने के, वाटर मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए। ओके, अब अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट टू ऑन अर्थ। अच्छा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो अपन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली विलेजर्स। कभी देखा होगा कि जो ट्रैक्टर होता है, इंजन होता है, और मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि इंजन में वाटर डाला जाता है। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन यही है कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है। इस वजह से एक्चुअल में क्या होता है, जब इंजन चलता है तो क्या होता है, वो गर्म होता है, हीट निकलता है उसमें से। अब उस हीट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है, और हीट को एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस है या लिक्विड है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन उसके खुद के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आए। ये खुद के टेम्परेचर में यदि ज़्यादा चेंज आएगा तो क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो जो है ना विदाउट वाटर ही सही है। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा लिक्विड डाला जाता है, इंजन, ट्रैक्टर और जो भी मोटर व्हीकल्स, उनके अंदर ऐसा मतलब बोल सकते हैं इस वजह से वाटर डाला जाता है, बिकॉज वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होती है। इस वजह से वो क्या करता है, इंजन की जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस वाटर के अंदर टेम्परेचर भी कम चेंज होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, इस वजह से अपन वाटर को वहाँ पर यूज करते हैं। ओके, अब इसमें व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट टू लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है उसका क्या रिलेवेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ओके, मतलब लाइफ की सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स में, इन सब के बारे में डिस्कस किया है कि क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वाटर का लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब जो लार्ज बॉडीज वाटर हैं जैसे कि ओशियंस हो गया
ठीक है, रिवर्स हो गया, वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, किसमें, दिन के टाइम पर। एंड इससे क्या होगा, जो सन से हीट आने वाली, सन रे से जो हीट आती है उसको ज़्यादा अमाउंट में यदि एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम चेंज होगा, ओके, दिन के टाइम पर। एंड एट नाइट ड्यूरिंग विंटर द ग्रेजुअली कूलिंग वाटर कैन वार्म द एयर। अब जब क्या होता है, नाइट के टाइम पे क्या होगा, एयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर है उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होती है, मतलब उसके अंदर हीट पहले से स्टोर है। अब वो जो नाइट के टाइम पे क्या होता है, वाटर क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, बिकॉज ऑफ वाटर का टेम्परेचर है एयर के टेम्परेचर के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ओके, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। तो वाटर का टेम्परेचर हाई है नाइट के टाइम पे और एयर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वो जो हीट है वो वाटर से एयर में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जब हीट ट्रांसफर होगी तो वाटर की टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ उसकी स्पेसिफिक हीट आई, और डेफिनेशन में मैंने यही बताया है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका हीट ट्रांसफर होने पर उसके टेम्परेचर में बहुत ही कम बदलाव होता है, उसको उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, और स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से ये हीट ज़्यादा रिलीज करेगा और उसके टेम्परेचर में चेंज कम आएगा, ओके, टेम्परेचर में चेंज कम आता है लेकिन हीट रिलीज ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो नाइट के टाइम पे एयर का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, ओके। द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑल्सो टेंड टू स्टेबलाइज ओशियन टेम्परेचर। अब इस हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से जो ओशियन का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, मतलब यदि उसमें यदि ज़्यादा एनर्जी दी जाए ओशियन वाटर को तो उसके टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब दिन के टाइम पे ज़्यादा चेंज नहीं आता है बिकॉज अब वो मोस्ट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आता बिकॉज ऑफ उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओके। और इस वजह से यदि टेम्परेचर में कम फ्लैक्चुएशन होगा तो जो उसके अंदर लाइफ है, जो उसके अंदर जीवन है, किसके अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे कि फिश वगैरह हो गए, एल्गी हो गए, और भी एनिमल्स हैं, मतलब वाटर एनिमल्स हैं, वो क्या होंगे, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। और यदि वाटर के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट वाली प्रॉपर्टी नहीं होती ना तो क्या होता, दिन के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता, और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता ना तो क्या होता, ये जो वाटर लाइफ है वो क्या होती हैं, सस्टेन नहीं कर पाती, वाटर लाइफ है वो जीवित नहीं रह सकती थी। सो ये वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ही जो है वाटर लाइफ है वो एग्जिस्ट करती हैं, okay. Therefore, because of its high specific heat, the water that cover most of Earth keep temperature fluctuation on hand and in water within the limit that permit life. मतलब इन सभी जो तीनों लाइन का यहाँ पे समरी है, मतलब वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं उसके साथ साथ लैंड के जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है वो एक लिमिट में होता है, जिसकी वजह से उस पर लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने पर, थोड़ी सी सनलाइट आने पर यदि लैंड का टेम्परेचर कोई डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो क्या होगा, लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती वहाँ पर, ओके। अब एक और पॉइंट बताया था कि animal cell, yeah, we can say cell and human body also have more than 70% of water, okay. And what is the fact behind what is the reason behind the body need to maintain 70% of water, okay. So the reason behind first मतलब one of reason, okay, मतलब रीजन तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक रीजन क्या है कि वाटर है बॉडी के होम्योस्टेसिस बनाने रखने में हेल्प करता है। वाटर है वो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। अपनी बॉडी एक इंजन की तरह है, अपनी बॉडी एक मशीन की तरह है। मशीन के अंदर मतलब अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, और केमिकल रिएक्शन चलती हैं साथ साथ अपना एक्सपोजर होता है सनलाइट से,
ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी को क्या करना होता है, विदाउट अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसको एब्जॉर्ब करना होता है। मतलब वो एनर्जी ही अपनी बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा ना पाए, इस वजह से उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले ही एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। इस वजह से वाटर वहाँ हेल्प करता है। वाटर क्या करता है, उस जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन में या सनलाइट की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि वाटर नहीं होता ना, सपोज वाटर की जगह क्या होता और कोई लिक्विड होता, प्रॉपर्टी उसमें सेम होती लेकिन स्पेसिफिक हीट वाली प्रॉपर्टी मान के चलो डिफरेंट होती, उस स्पेसिफिक हीट उस लिक्विड की कम होती, तो क्या होता, मान के चलो अपनी बॉडी में इथाइल एल्कोहल है, ओके, इथाइल एल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है, सपोज सब प्रॉपर्टी कैसी हो, वाटर जैसी हो, लेकिन वन प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक हीट वाली है वो क्या हो, कम हो। मतलब स्पेसिफिक हीट जो है इथाइल एल्कोहल की वैसे भी कम होती है, तो क्या होगा, जब बाहर से सनलाइट मिलेगी, जब अपन दिन में धूप में निकला करेंगे ना, तो क्या होगा, थोड़ी सी सनलाइट से अपने अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ी सी लाइट में। और अपनी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसकी वजह से भी, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी बॉडी ड्राई हो जाएगी और सेल्स क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इस वजह से अपनी बॉडी में वाटर रिक्वायर है। मतलब एक रीजन क्या है वाटर क्यों वाटर की रिक्वायरमेंट का, कि बिकॉज ऑफ वाटर जो है वो अपनी बॉडी की होमियोस्टेसिस बनाए रखने में, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। साथ साथ मैंने और भी रीजन बताए थे कि अर्थ पर वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ वाटर है वो लैंड और खुद के टेम्परेचर को, मतलब वाटर बॉडीज के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ उसकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से। सो आज की वीडियो में इतना ही, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।